میں جس بھی لڑکے کو پسند کرتی اگلے دن وہ میرے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ ہر لڑکا مجھ پر مرتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے من پسند لڑکے سے شادی کی تو اس نے شادی کی رات مجھے طلاق دے کر ایسا راز بتایا جس کی وجہ سے سب لڑکے میرے آگے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ راز سن کر میرا دل پھٹ گیا اور میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میرا نام پری ہے۔ یہ نام مجھے میرے بھائی نے دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور اپنے ماں باپ کی بھی، کیونکہ اس خاندان میں بہت سارے بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اسی لیے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بہت خوبصورت بھی تھی اور ضدی بھی۔ مجھے سب کی محبت نے ضدی بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے حسن اور اپنے رکھ رکھاؤ پر بہت زیادہ غرور تھا۔ ساری زندگی جو میں نے مانگا وہ مجھے مل گیا، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ میں جس بھی لڑکی کو پسند کرتی وہ ہاتھ باندھے اگلے دن میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ ہمارے خاندان میں اس طرح کا کوئی بھی رواج نہیں تھا۔ یہ خاندان بیٹیوں سے پیار تو بہت کرتا تھا لیکن ان کو اتنی آزادی نہیں دیتا تھا، لیکن میرے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جو بھی لڑکا مجھے پسند ہوتا وہ میرے لیے حاضر کر دیا جاتا۔ مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھی اور اس میں مجھے ایک لڑکا بہت زیادہ پسند آ گیا تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی بات پر رو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت حسین تھا۔ سارے اسکول کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جس کو یہ لڑکا پسند کرے گا جانے وہ کون ہوگی اور کتنی خوش قسمت ہوگی۔ میں وہ خوش قسمت لڑکی بننا چاہتی تھی۔ اسی وقت میرے لیے محبت کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھیں گے، بریک ٹائم پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں، ہاتھ پکڑیں، باتیں کریں، بس یہی تک ہم محبت کو محبت کہتے تھے۔ لیکن وہ لڑکا بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک لاکٹ پڑا تھا۔ یہ لاکٹ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ اس کو پہنو، پھر دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو پہن لیا اور اگلے ہی دن وہ لڑکا خود میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اسکول کی لڑکیاں حیران اور پریشان رہ گئیں اور میں نے اس لڑکے سے دوستی کر لی۔ پھر ہم ساتھ بیٹھتے، ساتھ آتے جاتے، باتیں کرتے، ساتھ کھانا کھاتے، لیکن پھر اسکول ختم ہوا اور ہم لوگ کالج میں چلے گئے۔ اس دفعہ بھی میں کو ایجوکیشن میں ہی گئی تھی۔ یہاں پر لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہاں پر تو کچھ ایسا ہونے لگا کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی اگلے دن وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا اور کہتا جو تم کہتی ہو کروں گا، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ میں حیران بھی ہوتی لیکن میں بہت زیادہ خوش بھی کہ ہر کوئی مجھ پہ مرتا ہے اور میرا دل کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک دفعہ تو میرا ایک دوست اس قدر دل فریب تھا کہ جب میں کالج میں آتی تو وہ مجھے پھولوں کی پتیوں سے میرے پہ برسات کرتا، میرا پرس تک اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلتا، جو بات میں اس کو کہتی وہ مان لیتا، میرے کھانے پینے کا چیزوں کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتا، مجھے ہر روز تحفہ دیتا کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تھا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی اور وہ یہ کہ جب میں نے اسے کہا کہ کالج ختم ہونے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں نہیں جانا کیونکہ مجھے پڑھائی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس دل بہلانے کو آتی ہوں، ویسے بھی میرے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، میں نے کون سا کوئی نوکری کرنی ہے، لیکن اب میرا دل بھر گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں گھر پہ آرام کروں اور ٹائم سے شادی کر لوں، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میری یہ بات سن کر وہ کہیں کھو سا گیا اور بات بدلنے لگا، جبکہ وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ میں نے کہا کہ آج کس قسم کی عجیب باتیں کر رہے ہو، مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں یہ بتاؤ، کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ تم اشارہ کرو تمہیں جان دے دوں، ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کو کہو تو 4-5 دن تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہوں گا، لیکن اب شادی کی بات کر رہی تھی تو آگے سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں کروں گا، لیکن اس طرح سے نہ کہا جس طرح سے اسے کہنا چاہیے تھا، اور اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکا شہر چھوڑ کر ہی بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو۔ یہاں اس کا اپنا گھر تھا، یہاں پر سارے دوست، خاندان، سب کچھ ادھر ہی تھا، اور تو یہاں پر نوکری بھی تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے چلا گیا، اور گیا تو گیا، یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی بند تھا، بلکہ بند نہیں، اس کا نمبر تھا ہی نہیں، اس نے اپنا نمبر ختم کروا دیا تھا اور اب اس کے نام پر نہیں تھا۔ مجھے آج بھی نہیں بھولتا کہ وہ ایسے کیسے بھاگ گیا، پر مجھے لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ میرے حسن کے آگے سارے ہی مان پڑ جاتے تھے اور میرے ایک اشارے پر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا، میں اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ یہی تو زندگی ہے، اور حسین لوگوں کی زندگی تو ویسے بھی حسین ہو جاتی ہے کیونکہ ساری دنیا ان پر مرتی ہے۔ میں اپنا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے حسن پر بہت پیسہ خرچ کرتی تھی، بلکہ پیسے کو پانی کی طرح خرچ کرتی، تبھی تو اور بھی زیادہ چمکتی تھی اور حسین لگتی تھی۔ میرے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔
मैं ही सबसे आगे थी। ऐसा ही था कि जैसे रेस में अकेली भाग रही थी, तो फिर जीतना तो मैंने ही था। मैं कहती थी कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहने के लिए आया। हम कॉलोनी में रहते थे और यहाँ पर सब अमीर लोग रहा करते थे। वो लोग भी बहुत अमीर थे। उनको मैंने सुबह सुबह गाड़ी में जाते हुए देखा। वो बहुत हैंडसम था। उसे देखकर कोई लड़की भी पागल हो सकती थी। इंसान हमेशा उसी से मोहब्बत करता है जिसे वो खुद से बेहतर और खुद से ज़्यादा हसीन समझता है। और अब जब मेरे सामने मुझसे बेहतर कोई शख्स आ गया था, तो ये कैसे मुमकिन नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत न कर बैठती। मैं सुबह सुबह उसे देखती। वो शायद वर्जिश करने जाया करता था। उसका कसरती बदन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो खुद भी अमीर भी था। उनका बहुत बड़ा घर था और उनके घर में वो अकेला था और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अकेला ही रहता था। एक लड़की नजर आती थी जो कभी कभी वहां पर आती और फिर अपने शौहर के साथ वहां से चली जाती। शायद वो उसकी बहन थी जो सुबह ही आती, रात में वापस चली जाती थी। इसका मतलब है कि वो शादीशुदा था। उसने एक दिन थोड़ी सलाम दुआ कर ली और कहा कि आप हमारे हमसाए हैं, आए हमारे साथ बैठे, चाय पीते हैं। मैं किसी के साथ भी इतनी अच्छी तरह पेश नहीं आती थी। मैं तो किसी को पहले बुलाती भी नहीं थी, लेकिन अब मेरा मतलब था तो ये सब तो मुझे करना ही था। वो लड़की बहुत मासूम, बहुत अच्छी थी। शायद उसकी कम उम्री में शादी हो गई थी। उससे थोड़ा बहुत बातचीत की जिसमें ये पता चला कि उसके भाई का घर है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपने शौहर के साथ दूसरी कॉलोनी में रहती है। लेकिन भाई अकेला होता है तो कभी कभी मिलने के लिए आ जाती है। मैंने कहा कि भाई की शादी कर दो। कह रही थी कि भाई को खाना पकाना नहीं आता, उसको इसीलिए परेशानी होती है। तो कहने लगी कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर रहे हैं, मिल जाए तो जल्दी उनकी शादी कर देंगे। बस मेरे दिल में ये बात आ गई थी। मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी और कहा कि कुछ भी करके मेरी शादी उस लड़के से करवा दो। अम्मी का कहना था कि लड़की वाले खुद रिश्ता लेकर नहीं जाते। मैंने कहा कि उसकी बहन है, पागल सी है, क्या पता उसे कि रिश्ता लेकर आते हैं या नहीं। आप उससे बात करें, मैं उसे घर तक ले आऊंगी, बाकी काम आपका है। मैंने ऐसा ही किया। उस लड़की को चाय का कहकर अपने घर में बुलाया। एक दफ़ा तो उसने मना कर दिया, दोबारा वो मना नहीं कर सकी और घर आ गई। फिर उसको अम्मी के पास बिठाकर मैं कोई बहाना करके वहाँ से उठ गई और अम्मी को फ़ोन किया। उनको कहा कि आज ही बात कर लेना, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। मेरी माँ ने उस लड़की से बात तो कर ली, लेकिन पता चला कि वो लड़की अपने भाई की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहती है। ये बात मेरे दिल पर क़यामत बनकर टूटी और मैंने घर में खाना पीना छोड़ दिया। मेरा बाप और भाई दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहा कि हम कुछ करते हैं तो उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? जब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो दफा करो। मैंने कहा कि वो कौन होता है मुझे रिजेक्ट करने वाला? सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है? शादी करनी है, मैंने उससे शादी करनी है, बस मैंने अपनी जिद बना लिया था। मैंने घर वालों से कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी लड़के से, नहीं तो किसी से भी नहीं करूंगी। अपने बाप और भाई के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी थी, लेकिन आज मैं उनके सामने भी बोल उठी। वो भी अपना सर पकड़ कर बैठ गए। 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया। तीसरे दिन मुझे चक्कर आने लगे और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। घर वालों ने कहा कि खाना पीना मत छोड़ो, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस लड़के का नाम अज़म था। वो जितना हसीन था उतना मगरूर भी था, लेकिन मुझे इसकी यही अदा बहुत अच्छी लग गई थी, इसलिए मुझे इससे शादी करनी थी। 2 हफ्ते गुजर गए। मैं रोज़ घर में शोर डालती, घर वाले भी हैरान होते। मैंने सारे भरम तोड़ दिए थे, सबके सामने खुलकर आ गई थी और यहाँ तक भी कह दिया कि आज तक किसी ने मुझे इनकार नहीं किया, तो ये कैसे कह सकता है। और फिर 2 हफ्ते के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं वाकई हैरान रह गई। उसकी बहन भाई का रिश्ता लेकर खुद हमारे घर आई। अब मैंने उसे देखा तो मैं भी गुस्से में थी। मैंने कहा कि यहाँ कैसे? तो कहने लगी तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। मैंने कहा अच्छा, अब तो मेरा रिश्ता मांगना याद आ गया, पहले तो तुमने इनकार कर दिया था। उसने सर झुका दिया और कहा कि इनकार नहीं किया था, अब सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। बहरहाल उसने सारे मामलात मेरे माँ बाप से तय कर लिए और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि मल्क अल्तमिश की बेटी किसी को पसंद करे और वो उसको मिले नहीं। मैंने शादी पे बहुत तैयारियां की। आखिर मुझे बहुत हसीन जो लगना था। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी। मेरे लंबे बाल थे, पतली कमर थी, बड़ी बड़ी आंखें थीं, बारीक होंठ, रंग तो मेरा दूध जैसा ही था। फिर मैं प्यारी क्यों ना लगती, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा हसीन लगना था। शादी हो गई और मैं अपने घर चली गई। वो पूरा घर अब मेरा था और मेरा शौहर भी दरअसल मुझे जीत का एहसास हो रहा था कि पड़ा आया था मुझे इनकार करने वाला। अब सारी जिंदगी मेरे नाज उठाएगा, मेरे कदमों में बैठेगा, जो चाहूंगी वो करेगा, मुझे शॉपिंग मॉल पर लेकर जाएगा। मैं नाराज हो जाऊंगी तो मेरे आस पास मंडलाएगा। यही होती है मर्द की औकात कि वो औरत के लिए ही बनाया गया है, ताकि उसके नाज नखरे उठा सके, उसके लिए घर में चीजें ला सके और उसकी हिफाजत कर सके।
मैं बहुत खुश थी कि मेरा शौहर मेरे कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक ऐसा तोहफा दिया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मेरे सारे बचे हुए औसान भी ख़ता हो गए। उसने मेरा घूंघट उठाया और एक ऐसी बात कही कि कदमों तले से मेरी ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी थी, पर उसने कहा कि परी अल्तमश, मैं अपने पूरा होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाकर मुझे तलाक दे दी। मुझे तलाक हो चुकी थी। मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरा सर चकरा गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा शौहर ही मौजूद था। यही कहना मुनासिब होगा कि अब वो मेरा शौहर भी नहीं था। अज़म ने मुझे कहा कि होश आ गया हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं भी गुस्से में आ गई, जबकि मुझे दुख भी बहुत हो रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? अपनी शक्ल देखो, अपनी औकात देखो। इतनी हसीन लड़की को तलाक देकर तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझे तुमसे भी ज़्यादा हसीन लड़का मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। जब मैं ये बातें कर रही थी तो वो हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा कि तुम और हसीन खुद को कहती हो, तुम्हें ये किसने कह दिया है कि तुम खूबसूरत हो? मैंने कहा कि किसी के कहने की क्या ज़रूरत है, ये बात तो मेरा आईना हर रोज़ कहता है। वो हंसने लगा और मैं सोचने लगी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहा है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देना था। कहने लगा कि किया तो था इनकार। मैंने कहा कि मुझ जैसी हसीन लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। लोग मरते मुझसे शादी करने के लिए और मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन मेरी गलती थी। मैं किसी आम इंसान को ख़ास बनाने चली थी, लेकिन तुम्हारी औकात ही यही है और सारी ज़िंदगी इतनी ही औकात रहेगी। मेरे जैसी हसीन। अभी मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मुझे आज पता चला कि एक मर्द का थप्पड़ किस तरह का होता है। उसने मुझे बेदर्दी से पकड़ा और एक लंबे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि देखो अपने आप को, कहाँ से हो तुम खूबसूरत। उसने मुझे आईने के सामने खड़ा किया तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो आईने में खड़ी थी वो मैं नहीं थी। उस लड़की की रंगत काली और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसके कपड़ों से बाहर उसके वजूद से चर्बी नज़र आ रही थी। आंखें बिल्कुल ही बारीक, होंठ बहुत मोटे मोटे और हाथ पांव तकरीबन मर्दों जैसे लग रहे थे। मैंने जब खुद को हाथ लगाया और देखा कि मेरा अक्स भी खुद को छू रहा है तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई। मैं इस अक्स को देखते देखते रोने लगी, ज़मीन पर बैठ गई और अपना सर पीटना शुरू कर दिया। या मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मुझे तुम पर तरस आता है। दरअसल तुम हमेशा से इतनी ही बदसूरत हो, यही तुम्हारा असल रूप है, लेकिन तुमने खुद को खूबसूरत कहकर अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ बना दिया। हर लड़का तुम्हारे आगे सर झुकाकर इसलिए खड़ा होता था क्योंकि तुम्हारा बाप और भाई उसे डरा दिया करते थे। जब मैंने शादी से इनकार किया इसलिए क्योंकि मुझे तुम अच्छी नहीं लगी, तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? और तुम्हारे और मेरे रंग और रूप में फ़र्क था। अगर शादी कर भी लेता तो हमारी ज़िंदगी अजाब हो जाती। अगर मैं तुमसे शादी करता तो शायद तुम में कोई अच्छाई देख कर करता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर वैसे भी नहीं थी। लेकिन जब तुमने कहा कि मुझे इस शख्स से शादी करनी हो, तो जानती हो तुम्हारे बाप और भाई ने क्या किया? मेरी इकलौती बहन को अगवा कर लिया। 3 दिन तक न जाने उसे कहाँ रखा। उसे कहा कि अपने भाई को मनाओ कि हमारी बहन से शादी करे। और जानती हो कि किसी लड़की को अगवा कर लिया जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये तो मेरे बहनोई का भला हो जो अच्छा इंसान था, जिसने इस बात को समझा और फिर भी मेरी बहन को कबूल कर लिया। नहीं तो अपनी शादी के दूसरे ही साल वो एक बच्चा लेकर वापस मेरे दर पर आ जाती। वो मेरी छोटी बहन है, मैंने बहुत नाज नखरों से उसको पाला है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की तरह उसे बिगाड़ा नहीं है। तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई और तुम मेरे निकाह में आ गई, लेकिन मैंने भी तुम्हारे खानदान वालों से बदला लेने के बारे में सोच लिया था, इसलिए तुम्हें देखते ही तलाक दे दी। अब तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे शादी के पहले ही दिन तलाक हुई है। अब ये माशरा तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम खूबसूरत लड़की नहीं हो। सारी जिंदगी जो लोग तुम्हारे पीछे मंडलाते रहे हैं वो सिर्फ डर की वजह से, जो तुम्हारे बाप और भाई ने उनको दिया। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, सब तुमसे डरते हैं, तुम्हारे बाप और भाई से डरते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने खुशामद करते हैं। ये है तुम्हारी हकीकत। उस शख्स की बातें मेरे कानों में ऐसे जा रही थी जैसे कोई सीसा पिघलाकर मेरे कान में डाल रहा हो। मैं वहाँ से भाग उठी और अपने घर आ गई। मुझे वहाँ देखकर सब लोग हैरान रह गए। मैंने कहा, क्या मैं बदसूरत हूँ?
क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं बहुत बुरी हूँ? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? आप हमेशा यही कहते थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप लोग तो मुझे परी कहते थे। मेरे माँ ने कहा कि बेटा, माँ बाप के लिए तो औलाद प्यारी होती है और तुम हमारे लिए हमारी बेटी थी, लेकिन दरअसल खूबसूरत नहीं थी। मैं खूबसूरत नहीं थी तो अपने आप को धोखा दे रही थी। ये मुझ पर एक नफ्सियाती असर था जो उतर गया। आईने में देखा, हमेशा से ये लड़की तो मुझे आईने में नजर आती थी, लेकिन मैं खुद को धोखा दिया करती थी। मैंने कितने लोगों को मजबूर किया और आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिली कि जिस शख्स से मोहब्बत हो गई थी, शादी के पहले ही दिन उसने मुझे तलाक दे दी। मेरे माँ बाप और भाई ने कहा कि हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले उसकी बहन को अगवा किया था, अब तो हम उसे जान से मार देंगे। मैंने कहा कि खबरदार, जो आप लोगों ने उस तरह की कोई हरकत की वो हक पर थे, आप लोगों ने गलती की। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरे बाप और भाई ने कुछ ना किया और इसी तरह दिन गुजरने लगे। मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया। मैं सादगी से रहती, बस अपना ख्याल रखती थी। बहुत दुख भी होता था, रोती थी और मैंने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया और मुझ में मैं बिल्कुल खत्म हो गई थी। कहते हैं कि खुद को मैं कहने वाला हमेशा खुद को मैं ही कहता रहता है, कभी खुद को हम नहीं कह सकता, क्योंकि मैं का मतलब सिर्फ मैं अकेला और अना का मतलब भी मैं ही होता है। मैंने भी यही किया और मेरी अना भी झूठी थी। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ अपने माँ बाप की लाडली थी। मेरे बाबर भाई ने भी मेरी नाराज़गी के डर से न जाने कितने लोगों को डराया, धमकाया। शायद उन्हीं की बद्दुआएं मेरे साथ थीं, तभी मेरे साथ ये सब हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि जो वाकई एक अच्छी चीज़ थी। जब अज़म ने देखा कि मैं बदल गई हूँ तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब कभी कभी आते जाते एक दूसरे को हम सलाम कर लेते थे। कुछ दिन तक उसकी शादी है। उसकी बीवी वाकई बहुत हसीन और प्यारी सी है। मुझे उनकी शादी से कोई मसला नहीं है। उन्होंने हमें शादी में बुलाया, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने उसकी बहन से भी माफ़ी मांग ली है और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। हकीकत में सब कुछ इतना ही आसान होता है। जब हम सादगी से पेश आते हैं तो किसी को माफ़ करना भी आसान होता है। हम खुद को किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते। मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही बदल गई हूँ। मेरे घर वालों से मैंने कहा है कि जिससे मर्जी मेरी शादी करा दें, बस वो अच्छा इंसान होना चाहिए। मेरे रिश्ते की बात हो रही है। अल्लाह ने फिर भी मुझे माफ़ कर दिया कि मुझसे एक अच्छे इंसान को मिला दिया। उसका नाम रहीम है। वो वाकई एक अच्छा इंसान है और मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है। जबकि मैंने सब कुछ बता दिया है। वो कहता है कि अपने माजी को भूल जाऊं, अपना हाल मेरे साथ गुजारो और मुस्तकबिल के बारे में सोचा करो। अब मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।